ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨਸਾਈਟਸ ਵਿਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸਟਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਫਾਊਂਡਰ ਐਂਡ CEO ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਚੈਨਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਵਾਢੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਫਸਲ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਫਸਲ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਰ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਬੇਸਡ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਕਿ ਅਦਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਾਜ਼ ਅ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਈਲੋਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਈਲੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਵੈਦਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ FCI ਓਨਲੀ। ਅਤੇ FCI ਦਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਫਕੋਰਸ ਅਦਾਨੀ ਲਈ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਸਟੇਜ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟੋਰੇਜ ਕਾਸਟ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਟੋਰੇਜ ਏਰੀਆ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਅ ਮੋਰ ਕਾਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਸਟੇਜ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਇਟਸ ਐਨ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਿਸਟਮ। ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ 'ਚ ਪੂਰੀ ਵੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਕੇ। ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਆਪ FCI ਸਨ, ਸੋ ਆਈ ਨੋ ਦਿਸ ਸਿਸਟਮ ਸਲਾਈਟਲੀ ਬੈਟਰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 96 ਜਾਂ 97 ਕਿਲੋ 2-3 ਕਿਲੋ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਲੱਸ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਿਸਟਮ। ਸਾਈਲੋ ਬੇਸਡ ਸਟੋਰੇਜ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਫੋਰਮਸ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ। ਅਫਕੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਊ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਲਿਆਓਗੇ, ਉਹਦੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੇ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੇਕ ਕੂਕ ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਚੁੱਕਣੀ ਪਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਸਿਸਟਮ, ਕਰੰਟ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਫੋਰਮ ਲਿਆਏ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਨੀਡ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ, ਸਾਡੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਦੀ ਹੈਲਥ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਰਿਫੋਰਮਸ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨਾਲ, ਵਟ ਐਵਰ ਹੈਪਨਡ ਇਨ ਦੀ ਪਾਸਟ, ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਵਾਟਰ ਅੰਡਰ ਦੀ ਬ੍ਰਿਜ। ਗੌਰਮੈਂਟ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਰਿਫੋਰਮ ਲਿਆਉਣ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਟੇਕਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਰੀਆ ਵਾਲਾ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਕਿਉਂ ਖਾਈਏ? ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਾਟਰ ਦੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਦੂਜੇ ਫੀਲਡਸ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਫੋਰਮਸ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ ਫॉर ਦੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਨੇਸ਼ਨ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਜਸਟ ਅਬਾਊਟ ਵਨ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਇੰਟਾਇਰ ਨੇਸ਼ਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਨੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਿਫੋਰਮ ਆਉਣਗੇ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਲਪਫੁਲ, ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਟੂ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜਾ ਚੇਨ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਾਰਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਫੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਫੇਅਰ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫੇਅਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਐਂਡ 'ਚ ਐਂਡ ਕਸਟਮਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਵੈਲਿਊ, ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਐਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਰਿਟਰਨ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੀਏ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰੀਏ। ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦੀ ਨੋਰਮ। ਇਸ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਲਨ ਮੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿ ਬਈ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਮੰਨ ਕੇ, ਵਿਕਟਮ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬੈਠਾਂਗੇ,
ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫੇਅਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ एवरीवन benefit, other why only one community should make more money, they should make the best that they can, but others should also benefit। sustainability ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਲੈਟਸ ਸੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣ, ਕੀ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗਾ? It will not work. So it has to be fair, and that is how we should start re-looking at our approach towards any reform. जी सर, बिल्कुल सर। इसके अलावा वर्ल्ड इज़ फेसिंग अ न्यू प्रॉब्लम नाउ डेज, फूड स्टॉक है ਜਿਹੜਾ एम्प्टी होता जा रहा है दिनों दिन। प्रधानमंत्री ने जो बाइडन से इस सिलसिले में चर्चा की और उन्होंने कहा है कि अगर WTO परमिट करता है तो इंडिया इज़ रेडी टू सप्लाई फूड स्टॉक टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस समय में जहां रशिया यूक्रेन वॉर के बाद हमने डिस्कशन किया, हर कोई ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा है अपने स्टॉक बचा के रखें, तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखो, ये एक प्रपोजल है ना, इट्स नॉट अ डिसीजन, इट्स अ प्रपोजल, एंड इट्स अ वेरी वेरी यूजफुल डिसीजन प्रपोजल फॉर एवरीवन। चाहे मैं उसकी बात करूं लोगों के पर्सपेक्टिव से, दुनिया के और इंडिया के। हम फार्मर्स की इनकम बढ़ाने की बात कर रहे थे। जब आपकी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी, हम यूक्रेन रशिया क्राइसिस ने एक आप यू मस्ट बी नोइंग कि यूक्रेन और रशिया आर द ब्रेड बास्केट्स ऑफ यूरोप एंड इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की रफली 30% के करीब वीट की प्रोडक्शन जो होती है यूक्रेन और रशिया में होती है, और उनकी अपनी मेजर पॉपुलेशन है, दे आर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोड्यूसर्स ऑफ वीट। अब उस वॉर के कारण, लोगों की मूवमेंट के कारण उस प्रोडक्शन पे मेजर इम्पैक्ट आया है, और कई ऐसे देश हैं जहाँ पे एक एक हफ्ते का भी वीट का स्टॉक नहीं बचा है। तो उनके लोग, वहाँ पे महंगाई बढ़ रही है, उनके अंदर एक अलग टर्मोइल है। यूक्रेन रशिया क्राइसिस का हम इम्पैक्ट करते हैं ऑयल प्राइसेस से लेके, अब बाकी देशों पे इससे भी ज़्यादा सिवियर और डेंजरस इम्पैक्ट है कि इमीडिएटली फूड सिक्योरिटी खतरे में आ गई है। और इंडिया का ये बड़ा अच्छा प्रपोजल है कि वी आर विलिंग टू प्रोवाइड, WTO के सर्टन नॉर्म्स इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड प्राइसिंग। तो इंडिया को ये इंश्योर करना है कि हमारे किसानों को हमने इसकी ज़्यादा अपॉर्चुनिज्म भी नहीं देखनी है, बट एक फेयर प्राइस हम अपने लोगों को दे पाएँ। गवर्नमेंट जो MSP पे लेती है उससे बेटर प्राइस पे, क्योंकि वो WTO कहता है कि एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ कंट्रोल होनी चाहिए। तो इंडिया में एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ हैं, तो उनको एडजस्ट करके जो मैक्सिमम वैल्यू हम अपने किसानों को दिलवा पाएँ, दैट विल बी हेल्पफुल। और उसमें अगेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट काम आएगी, डिस्ट्रीब्यूशन काम आएगी, तो एक पूरा का पूरा हमारी सप्लाई चेन भी बिल्ड हो सकती है। अगर हम इस तरह के लॉन्ग टर्म टाइप्स कर लेते हैं तो पूरी दुनिया सिक्योर होती है, और इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ेगी, और इट विल इम्प्रूव द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट करोगे सर्टन क्वालिटी स्टैंडर्ड की आपको चीज़ प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, तो क्वालिटी नॉर्म्स अप्लाई होंगे, तो अपने आप हमें भी बेस्ट क्वालिटी नॉर्म्स की अडॉप्शन हमारे सिस्टम में होनी शुरू हो जाएगी। सर, डेवलपमेंट की बात करते हैं अब। फर्स्ट मेड इन इंडिया civil Dornier aircraft will be flying, and this will provide air connectivity to remote areas of Arunachal Pradesh. So how important this development is? देखो, इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं, और डॉर्नियर एयरक्राफ्ट की मिलिट्री और सिविल दोनों एप्लीकेशंस हैं। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने लाइसेंस तो इसकी परपेचुअल प्रोडक्शन का जर्मनी की कंपनी से बहुत देर पहले का ले लिया था, पर अब मेड इन इंडिया इसमें एडवांस एवियोनिक्स लगा के, इसमें बेटर मटेरियल यूज़ करके पहली बार पूरा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बना है, और इंडिया के पास एक्सपोर्ट लाइसेंसेस भी हैं। अब ये स्मॉल टाउन की कनेक्टिविटी, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़े रनवे नहीं चाहिए होते इस प्लेन को उड़ाने के लिए, 18-19 पैसेंजर्स को ये ले जाने के लिए बना है, और छोटे सिटीज़ के अंदर कनेक्टिविटी में आपको वो 150 शायद पैसेंजर भी ना मिलें, तो उस कनेक्टिविटी को ये बहुत इम्प्रूव करेगा। कई बार मेडिकल फैसिलिटीज़ और फैसिलिटीज़ छोटे छोटे एरियाज़ में पहुँचाने के लिए बहुत काम आएगा। इससे हम छोटे एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे बहुत बड़े रनवे, इसका शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग जो एरिया, बहुत रनवे की जो लेंथ है बहुत कम चाहिए, तो उससे हमें बहुत बेनिफिट हो सकता है। इसकी हमें मास प्रोडक्शन करके फास्ट कनेक्टिविटी, फास्ट डिलीवरी ऑफ सर्टन काइंड ऑफ सर्विसेज, फास्ट डिलीवरी ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज, ये सारी चीज़ें हम डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के थ्रू कर सकते हैं। अब विजन की बात होती है कि आपके विजन क्या है और आप उसको कैसे यूटिलाइज करना चाहते हैं। आई होप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये विजन, और काफ़ी छोटे छोटे देश हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे हम ये प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हैं, और इसका कॉस्ट भी अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और अपने आप जब रेवेन्यू आता है तो इनोवेशन भी होगी, अच्छे साइंटिस्ट भी हायर किए जाएंगे। तो इस तरह से अब इंडिया को सोचने की ज़रूरत है। रामनवमी सेलिब्रेशंस के दौरान जो क्लैशेस हुए वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और झारखंड में, उस पर टिप्पणी करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, मेरे राज्य में देयर इज़ नो टेंशन एट ऑल, और तू मैं जैसा माहौल भी नहीं है। आई थिंक ही कैन टेक जेन्युइन प्राइड इन दैट। जब 3-4 स्टेट्स में ऐसा इंसिडेंस हुआ है, और गुजरात जो आज से 5-7 साल पहले तक हमारी राइट्स कैपिटल थी,
हमारे देश की, वहाँ पे अगर 5 सालों में कोई मेजर राइट नहीं हुए हैं, उसके बावजूद सारा माहौल बिल्कुल शांति प्रिय रहा है और लोगों ने आपस में मिल के काम किया, तो दैट इज़ ही हैज़ जेन्युइन राइट टू बी प्राउड ऑफ दैट अचीवमेंट फॉर स्टेट। और होपफुली ऐसा ही रहे, और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स को, जिनके लिए लॉ एंड ऑर्डर जिनका सब्जेक्ट है, उनको ये देखना पड़ेगा कि इस तरह के राइट्स ना हो। देखो, हमेशा ऐसे लोग होंगे जो थोड़े से रिलीजियसली अग्रेसिव होंगे या व्हाट यू कॉल बिगट्स होंगे, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो अगर किसी को उकसाते हैं तो दूसरे लोग समझ के रहें। ये दोनों तरफ से हो सकता है। तो और उस सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसके बाद गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है, गवर्नमेंट कितना स्ट्रॉन्ग एक्शन लेती है कि जो लोग धार्मिक भावनाओं को उकसाते हैं उनके ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग कार्रवाई की जाए, ताकि कोई भी छुटपुट नेता जिसको लगता है कि मैं एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भड़का के लाइमलाइट में आ सकता हूँ, उसको ये मौका ना मिले। उनके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग और क्विक कार्रवाई करने की ज़रूरत है। एक गवर्नमेंट ने की है, पर उसमें भी ये भी देखने की ज़रूरत है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कार्रवाई हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कार्रवाई ना हो। सर, आखिरी सवाल, Xiaomi is repeatedly being investigated by ED. ED is investigating companies complies with the foreign exchange policy. आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखो, दिसंबर में भी 21 में भी इनके ऊपर रेड हुई थी। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट ये जो करंट रेड हुई है, इट इज़ रिगार्डिंग क्वेश्चनिंग देम ऑन दी इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी, फेमा रेगुलेशंस के रिगार्डिंग है। पर उससे पहले दे वर शोइंग कॉन्स्टेंट लॉसेस डिस्पाइट मेकिंग 30% मार्जिन्स। तो काफ़ी चाइनीज़ कंपनीज़ पे हुआ था, और शायद चाइनीज़ कंपनीज़ की ये पॉलिसी हो कि इंडिया में हमने टैक्स पे नहीं करने हैं, तो इन टर्म्स ऑफ कई बार रॉयल्टीज़ दिखा के, लाइसेंस फीस दिखा के, सारे के सारे कॉस्ट दिखा के, ताकि उस देश में आप टैक्स ना भरें, ये भी किया जाता है। तो मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये अच्छी तरह से समझना चाहिए कि भाई इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, तो जितने रिसोर्सेज हम अपने देश के लिए कर पाएँ, बट एट द सेम टाइम इट शुड नॉट लुक लाइक कि पर्टिकुलर कंट्री की कंपनीज को टारगेट किया जाता है। सिस्टम फेयर होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, और Xiaomi जैसी कंपनी को आंसर देने चाहिए, क्योंकि दे मेक बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्रॉम इंडिया। वो इंडिया की नंबर 1 स्मार्टफोन कंपनी है, 30% मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा है। आप इंडिया से प्रॉफिट बना रहे हैं, तो इंडिया में टैक्स देना और इंडिया के लॉज को फॉलो करना आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओनली देन यू हैव द राइट टू डू बिजनेस इन इंडिया। कि इंडिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट, इंडिया के फाइनेंशियल इंटरेस्ट को हर्ट किए बिना आपको यहाँ पे बिजनेस करना है। ये एक प्राइम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कॉर्पोरेट सिटीजन। वो अगर इंडिया के कॉर्पोरेट सिटीजन बने हैं, तो एक अच्छे सिटीजन की तरह बिहेव करना उनकी Xiaomi की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर व्यूज सर। ऐसे ही सिग्निफिकेंट एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और अपनी राय ज़रूर बताइए, अपने सजेशंस, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में, और ज़रूर बताइए कि अगली बार आप किस मुद्दे के बारे में बात करना चाहते हैं। धन्यवाद।